Current affairs in the last 1 month, and I'm pretty sure all the CLAT aspirants are looking for answers, how to cover such vast syllabus, how to even revise it. We have very limited time left. कितने घंटे दें, क्या sources करें, कितने कौन सी particular date तक करें. Let me step by step give you answers to all the frequently asked questions about the current affairs section on how to cover it in the last month. One very important thing to keep in mind is don't overdo current affairs. हम लोग क्या करते हैं? We overdo current affairs. हम लोग उसको बहुत ज्यादा दिन में 5, 6, 7 घंटे दे देते हैं कई बार, and as a result जो हमारे बाकी sections है ना वो सफर कर जाते हैं. We are not able to do really well in them. I'll tell you why. See, understand this. सारे sections को आपको equal weightage देना important है इस point of time पे. आपके जो weaker sections है उसको थोड़ा ज्यादा time दोगे. If current affairs is one of those sections, yes you will give it more time, but not 5-6 hours. Maximum to maximum 3 से 4 घंटे. Because current affairs एक ऐसा section है, आप कितना भी पढ़ लो, it will still not let you live peacefully in the preparation. क्यों? Because और कितने सारे ऐसे facts हैं जो मैं आपसे पूछ सकता हूँ in the topic that you've even read. And there are so many topics that we generally miss out on because every day everything is new. There are so many new things happening. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक लिमिट तक आप करंट अफेयर्स कर सकते हो, बट जो भी आपने करंट अफेयर्स कर लिया है ना, उससे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो मत भूलना बस. क्योंकि सबसे ज्यादा दुख तभी होता है कि आई हैव स्टडीड समथिंग, आई प्रॉब्ली रिवाइज्ड इट आल्सो, कभी कभी रिवाइज करना भूल गया, बट वो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया एंड देन आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, आई डिड नॉट हैव आंसर्स टू इट. मैंने मार्क तो किया बट आई एम नॉट श्योर वो सही है गलत है, कई बार गलत भी हो जाते हैं, वहां पर काफी दुख होता है फिर, राइट? तो रिवाइज ठीक से करना. लेट्स क्रिएट अ प्लान फॉर यू नाउ. सबसे पहले सोचते हैं कि कहां से प्रिपरेशन करेंगे. ठीक है, 5 सोर्सेज मैं आपको बताऊंगा जिसको आप साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करोगे फॉर ईच मंथ, और एक बार मंथ टू मंथ ही करना. First source is easy. It's a current affair compendium. Whatever compendium you want to refer to, do that. Whichever you've been doing so far, सिर्फ उसी पर stuck रहो. Good compendium and do it properly. Second, I'm sure you have some sort of mentors teaching you. Please make sure कि आप उन mentors का पूरा use करो. Take all those classes. Would certainly help you. We are also doing a CLAT Festival 3.0 जहाँ पर I will be taking multiple current affairs classes on various different topics. चाहे revision हो, चाहे नए topics हो, marathons हो, we will be covering all of that. You can come to my class also if you like my style of teaching. अगर आप CLAT Festival 3.0 को मेरे current affairs बैच के साथ में merge भी कर सकते हो, है ना? You can take that batch. इसमें आपको 45 मिनट से ज्यादा क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए, which is my fourth point, because आपको पता नहीं है कि आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया है तो उसको कैसे सॉल्व करोगे. तो फोर्थ सोर्स आर या सेक्शनल टेस्ट और क्वेश्चन बैंक फॉर जीके एंड करंट अफेयर्स एज वेल. ठीक है, प्लस जो मेरा कोर्स है उसमें आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ क्लासेस, अ लॉट ऑफ डिस्कशन. स्टैटिक जीके विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट, तो उसके लिए आपको अलग से बहुत सारा कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, राइट? एंड योर फिफ्थ सोर्स आर गोइंग टू बी योर मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस जो पहले आप कर चुके हो. कितने सारे ऐसे क्वेश्चंस रहे होंगे जिनको आपको आंसर्स नहीं आते थे, आपने उस टाइम पे डेफिनेटली उनको पढ़ा था, हो सकता है कहीं पर नोट भी किया हो. गो थ्रू देम अगेन. The point of this exercise is that obviously we are going to learn new things going forward, but we do not want to forget the things that we've already done. है ना? We want, अगर वो एग्जाम में आता है, we want to remember them for the exams as well, right? So just keep it simple. You have it and you do crack it. इन 5 sources से पढ़ना, इसके अलावा छठा source बिल्कुल मत टच करना till your CLAT exam at least. Now one major question that a lot of you have is, sir कौन सी डेट तक करंट अफेयर्स को पढ़ें? तो एग्जाम से 15 दिन पहले तक तो पढ़ना ही है. सो अबाउट 20 से 22nd 23rd नवंबर तक आप डेफिनेटली पढ़ो. तब तक के जो भी करंट अफेयर्स हैं उनको रेगुलरली करो. और जब आप करंट अफेयर्स प्रिपरेशन की बात करते हो ना लास्ट मंथ में, डू इट इन अ टारगेटेड मैनर. व्हाट डज दैट मीन? मैं कोशिश करूंगा दैट बाय अ पर्टिकुलर डेट, लेट्स से 20 से 22nd नवंबर का मैंने टारगेट बनाया है कि मैं सब कुछ एक बार कवर कर लूंगा. ऑल द करंट अफेयर्स आई विल बी एबल टू कवर एटलीस्ट वंस मैंने एक बार सब कुछ कवर कर लिया है, then I will move on to only revision and I will not look back at what I have done so far. मैं सिर्फ और सिर्फ पीछे से रिवीजन करना शुरू करूंगा. ठीक है, लेकिन तब तक आपको ये श्योरिटी होनी चाहिए that you have covered all the months that you wanted to cover. Now the thing is, what is going to be my priority months? Last 6 to 7 months, which is November, October, September, August, July, June and May. ये आपके प्रायोरिटी मंथ रहेंगे, बट दैट डजंट मीन दैट यू कैन लीव एवरीथिंग फ्रॉम Jan to April. Identify the important topics from compendium, from wherever you can, but make sure you are doing the important topics from those months as well. Don't outrightly say कि यहाँ से कुछ नहीं आता, ऐसा कुछ भी नहीं है. एक पैसेज या कभी कभी 2 भी आ गए ना, you will be screwed. Don't take that risk. Do it properly. अगर कर रहे हो तो अच्छे से ही करके जाओ. But yes,
लास्ट से 6 to 7 मंथ जो है उस पर ज्यादा फोकस करोगे इन दी रिविजन बिट ऑफ इट। और आप पहले ही जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना तो टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लेना कि आपको जनवरी से लेकर अप्रैल तक के कौन से टॉपिक्स को रिवाइज करना है। फिर आप हर 2 दिन में एक मंथ को अच्छे से रिवाइज भी कर पाओगे। यू विल बी एबल टू ऐड स्टैटिक जीके टू इट इफ यू वांट। तो आपका बहुत अच्छा रिवीजन शेड्यूल बन जाएगा लास्ट के 2 हफ्तों में। बट पहले 20 दिन काफी हेक्टिक होने वाले हैं। यू हैव टू गिव इट 3 to 4 आवर्स एवरी सिंगल डे, ताकि अगर आपका ज्यादा बैकलॉग भी बचा है एंड यू हैव नॉट डन अ लॉट, यू कैन स्टिल ट्राई एंड डू इट। यू कैन ऑब्वियसली, जैसे मैंने बताया कि क्लासेस वुड हेल्प यू, कंपेंडियम्स वुड हेल्प यू, इट इज नॉट जस्ट वन थिंग दैट कैन हेल्प यू। जैसे आपको लगता है कि मैं कोई 6 घंटे की मैराथन देख लूंगा तो मेरा वहां से सब हो जाएगा। नो नो नो, देयर इज नथिंग कॉल्ड अ वन शॉट इन क्लैट। ठीक है, वो सिर्फ बोलने वाली बात है। आपको लगता है कि सब कुछ कवर हो जाएगा, दैट इज अ रॉन्ग वे टू गो अबाउट इट। दैट इज हेल्पफुल, but that doesn't mean that I will just rely on it and I will not do anything on my own, right? We have to be matured enough when we're preparing for an exam like CLAT, which is a national level exam. Yes, I will do self-study as well, and these sort of marathons will certainly help me getting some experience of what sort of topics to be covered, what is the depth in which I have to cover, find the right mentor who can help you cover that will certainly help you a lot in the preparation overall. उसके अलावा जैसे मैंने बताया, प्लीज ट्राई टू कीप इट सिंपल। आपको हर बढ़ते दिन में स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा कि इतना सारा करंट अफेयर्स बचा है। आप कुछ मॉक दोगे, आपको फिर भी कई सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे एंड आपको हमेशा ये लगेगा कि यार आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, मेरे से नहीं होगा, व्हाट इफ आई एम नॉट कट आउट फॉर इट, व्हाट आई एम नॉट मेड फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, पीपल आर स्कोरिंग सो मच बेटर। लोगों के तो 30 में से 25 नंबर आ रहे हैं, 26 नंबर आ रहे हैं, मेरे तो 6-7 नंबर ही आ रहे हैं, 16-17 नंबर ही आ रहे हैं। डोंट वरी अबाउट इट, स्टिक टू द बेसिक्स. If you have completed all the months of preparation and even then you're getting a very, very low score, that means that your sources were probably misled. You are not reading the right sources. तो आप sources को थोड़ा सा change कर सकते हो, बहुत ज़्यादा tweak मत करना। और आपको कई बार अगर ऐसा लगता है मॉक देते वक्त कि मुझे ये आता था, I had read about it, but it's just that कि मुझे याद नहीं आ रहा, इसका मतलब रिविजन नहीं कर रखा है आपने। ठीक है, तो rather than cribbing over things, rather than crying over things, the most important thing is to concentrate well. Try to do things in the best possible manner, waking up with that sort of zeal and energy every single day कि आज मैं ठीक से preparation करूंगा या करूंगी। I am going to be the best version of myself going into the last month. You have it in you to crack it. Believe me, I have seen people like you every year cracking it, जो 1 महीने पहले इतनी ज्यादा टेंशन ले रहे थे, धीरे धीरे करके शांति से उन्होंने खुद को समझाया, प्रिपरेशन पे ध्यान दिया और लास्ट डे बड़े कामली अच्छे से एग्जाम करके आए एंड दे आर सिटिंग इन टॉप 5 NLUs वेटिंग फॉर यू टू रीच देयर दिस पर्टिकुलर ईयर। ऑल द बेस्ट गाइस, प्रिपेयर वेल। अगर आपके पास कोई भी डाउट है विद रिस्पेक्ट टू current affairs preparation the last month, if I have forgotten or I did not cover in this particular session, feel free to mention in the comment box. I'll be very happy to take it from there and answer it for you. Keep smiling, keep that faith and that zeal very, very high. All the best guys. I'll see you in my class.